بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں گیس کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی۔ ملتان میں موسم سرما کے دوران گیس غائب رہنا معمول بن گیا۔ شہر کے بیشتر علاقوں کی طرح محلہ قادر آباد میں بھی گیس کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے، جس کی وجہ سے علاقہ مکینوں کو شدید دشواری کا سامنا ہے۔ ناظرین، ہم آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں۔ ملتان میں موسم سرما کے دوران گیس غائب رہنا معمول بن گیا۔ شہر کے بیشتر علاقوں کی طرح محلہ قادر آباد میں بھی گیس کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے، جس کی وجہ سے علاقہ مکینوں کو شدید دشواری کا سامنا ہے۔ شہر اولیاء ملتان میں سوئی گیس کی بندش معمول بن گئی، جس کی وجہ سے شہریوں کو اذیت کا سامنا ہے۔ محلہ قادر آباد کے مکین بھی گیس لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے شدید پریشان ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ گیس آئے نہ آئے بل ہر ماہ بھرنا پڑتا ہے۔ سردیوں میں اتنی ٹھنڈ نہیں پڑتی، یہ گیس چلا جاتا ہے گھر میں۔ اب ایل پی جی دیکھ لیں 240 روپے کلو ہے، تو صبح ناشتے میں ایل پی جی پوری کریں، بچوں کی روٹی پوری کریں یا گھر کے دوسرے کام پورے کریں۔ علاقہ مکینوں کا مزید کہنا تھا کہ پورا مہینہ لکڑیاں اور ایل پی جی خریدنا جیب پر بہت بھاری پڑتا ہے۔ ایل پی جی خریدنے کے پیسے جب نہ ہوں تو بچے بھوکے بیٹھے رہتے ہیں۔ آج بھی دیہڑی پہ گیا تھا، واپسی خالی ہٹ کے آ رہا ہوں۔ اچھا، بچے گھر بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں، گھر میں کام ہے نہیں، دیہڑی دار بندہ کیا کرے۔ گیس آتی نہیں ہے، مہینے کا 5-6 ہزار روپے کا ایل پی جی گیس کا خرچہ ہے۔ علاقہ مکینوں نے انتظامیہ سے گیس کی لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ مین ہارون رمضان کے ساتھ ابراہیم خان، ملتان۔ اب بات کرتے ہیں آٹا بحران کی۔ ملتان سمیت پنجاب بھر میں آٹے کا بحران جوں کا توں برقرار۔ حکومتی دعوے ہوا ہو گئے۔ گندم کی فی من قیمت 4200 روپے تک کر گئی، مگر چکی مالکان اب بھی پہلے والے ریٹس پر ہی آٹا بیچنے لگے۔ ملتان سمیت پنجاب بھر میں آٹے کا بحران جوں کا توں برقرار۔ حکومتی دعوے ہوا ہو گئے۔ گندم کی فی من قیمت 4200 روپے تک کر گئی، مگر چکی مالکان اب بھی پہلے والے ریٹس پر ہی آٹا بیچ رہے ہیں۔ پنجاب بھر میں آٹے کا بحران جاری۔ حکومت کے آٹے کی قیمت میں کمی کے دعوے اپنی جگہ، مگر چکی مالکان پہلے والی قیمتوں پر آٹا فروخت کرنے میں مصروف ہیں۔ دکاندار کہتے ہیں کہ گندم کو بہت دیر سے ریلیز کیا گیا، جس کی وجہ سے آٹے کا بحران پیدا ہوا۔ آنے والے دنوں میں آٹے کی قیمت کچھ کم ہو سکتی ہے۔ پچھلے ہفتے گندم کا ریٹ بہت زیادہ تھا، وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ نے گندم ریلیز کم کی، اس کے بعد اب انہوں نے زیادہ ریلیز کرنی شروع کر دی ہے۔ اب مارکیٹ ڈاؤن ہو رہی ہے اور انشاءاللہ بہت جلد اور ڈاؤن ہو جائے گی۔ جیسے جیسے وہ ریلیز کرتے جائیں گے اور ڈاؤن ہو جائے گی۔ اب ریٹ 120-130 روپے کلو پر آ جائے گا۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ اس طرح سے آٹے کا بحران کبھی بھی نہیں دیکھا۔ حکومت کی شدید نااہلی کی وجہ سے یہ مسائل شہریوں کو دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ سرکاری آٹا ملتا ہی نہیں، غریب بندہ کیا کرے۔ 140 روپے کلو مل رہا ہے، پچھلے ہفتے 150 روپے کلو تھا۔ اب حکومت کا کہنا تو یہ ہے کہ بہت جلد اس کا ریٹ جو ہے نا ڈاؤن کیا جائے گا۔ چکی مالکان اور شہریوں نے حکومت پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ آٹا اور گندم کے ریٹس کم کیے جائیں تاکہ عوام اس طرح سے خوار نہ ہو۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر بلال یونس کے ساتھ حسن ملک، روہی، ملتان۔ رحیم یار خان سے خبر دیں گے آپ کو۔ ہائے مہنگائی، ہائے مہنگائی۔ رحیم یار خان میں مہنگائی نے اگلے پچھلے ریکارڈ توڑ دیے۔ 1 کلو گھی کی قیمت مزدور کی ایک دن کی کمائی کے برابر ہو گئی۔ غریب ہانڈی کا تڑکا کیا لگائے گا، مہنگائی نے اسے تڑکا لگا دیا۔ ناظرین، ہم آپ کو عام خبر سے آگاہ کر رہے ہیں۔ ہائے مہنگائی، ہائے مہنگائی۔ رحیم یار خان میں مہنگائی نے اگلے پچھلے ریکارڈ توڑ دیے۔ 1 کلو گھی کی قیمت مزدور کے ایک دن کی کمائی کے برابر ہو گئی۔ غریب ہانڈی کو تڑکا کیا لگائے گا، مہنگائی نے اس سے تڑکا لگا دیا۔ مہنگائی نے اگلے پچھلے تمام ریکارڈز توڑ دیے۔ رحیم یار خان میں اشیاء خریدنے جائیں تو ہر بار نئی قیمت ملتی ہے۔ مہنگائی نے امیر چھوڑا نہ غریب کو، ہر طبقہ پریشان۔ ہانڈی کی شان اور تڑکا لگانے والا گھی بھی مہنگائی کی نظر ہو گیا۔ کراچی برانڈ گھی کی قیمت 50 روپے اضافے کے ساتھ 410 کے مقامی برانڈ کے گھی کی قیمت 20 روپے اضافے کے بعد 480 روپے ہو گئی ہے۔ اب گھی کی قیمت مزدور کی ایک دن کی کمائی کے برابر ہو گئی ہے۔ کام نہیں ہے، بالکل 1 مہینہ آ گیا فارغ ہے سب، یہ جتنے بھی مزدور ہیں اتنے بے تنگ ہے کہ بے حد۔ اور اگر گھیو لینے جانے، وہ کراچی والا جو آپ بات کر رہے تھے کہ گھیو ہے، وہ ابھی 490 روپے کا ہے، 75 کا نہیں ہے۔ یہ آپ کو انہوں نے بتایا ہوگا، ہم لینے جائیں ہمارے ساتھ چلے ابھی بھی 490 روپے کا دیتے ہیں۔ بہت پریشانی ہے جی، کھانے کو کچھ نہیں لبتا ہی نہیں، نہ دیہڑی لگتی ہے، نہ کام ملتا ہے، نہ کوئی پیسہ ہے، کہاں سے جائیں ہم؟ ادھر سے لنگر دیتے ہیں، 2 روٹی ملتے ہیں، بس وہ کھا لیتے ہیں بس۔ مہنگائی کی وجہ سے لوگوں نے کام کروانا چھوڑ دیا۔ مزدور کئی ماہ سے مزدوری کے لیے ترس گئے۔ کیمرہ مین انور سہیل کے ساتھ عاصم صدیق، روہی، رحیم یار خان۔
खबर शामिल करते हैं और आपको बताते हैं कि मुल्तान शहर की ज्यादातर सड़कें सीवरेज मंसूबों की नजर हो गई। कोई मंसूबा ताखीर का शिकार है तो किसी को ब्रेक ना लग सकी। सड़कों से महरूम शहरियों को कई मसाइल का सामना रहने लगा। तफसीलात जानते हैं शकील सुल्तान की इस रिपोर्ट में। औलिया कराम के शहर मुल्तान की ज्यादातर सड़कें तबाहाली का शिकार। नवाबपुर और वाटर वर्क्स रोड सीवरेज मंसूबे की नजर हो गए। कई साल से जारी तामीराती कामों ने शहरियों को अजियत में मुब्तला कर दिया। दोनों सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी भी बुरी तरह मुतासिर है, जबकि कारोबार भी ना होने के बराबर हो चुका है। इंतजामिया की सुस्ती से शहरी परेशान हैं। जब से ये रोड बन रहा है आप खुद देख रहे हैं कि ये टूट फूट का शिकार है। 6 महीने पहले सीवरेज का काम शुरू हुआ था, सीवरेज वो डाल के चले गए, उसके बाद पानी फिर निकल आया है। ट्रैफिक चल रही है रोड पे, आए रोज हर 10-15 मिनट बाद एक्सीडेंट हो रहे हैं, हर 10-15 मिनट बाद। और फिर यहाँ पे कुछ देर बाद रेडियो वाले भी आ जाते हैं और रोड फिर और छोटा हो जाता है। शहरियों का कहना था कि सीवरेज और सड़कों के मसाइल ने उन्हें तंग कर रखा है। मिट्टी, गड्ढे, खस्ता हाल सड़क और सीवरेज ज़दा पानी वबाले जान बन गया है। काम में सुस्त रवि और बद इंतजामी से हर शहरी इंतजामिया से मायूस दिखाई देता है। 3 से 4 साल हो गए हैं, ये रोड तमाम कारोबार यहाँ पे ठप हो चुका है। यहाँ के अवाम, गली मोहल्ले वाले सारे परेशान हैं। अगर आप आगे कुछ कदम चाहें तो देखें, दुकानदारों ने अपने कारोबार बंद करके सब्जियों के फटे लगा दिए, और ऐसा कि नाअहली देखें कि सुई गैस के पाइप तोड़ दिए उन्होंने। ये आपके सामने मुंह बोलता सबूत है। शहरियों ने आला अफसरान से मुतालबा किया है कि शहर की तबाहाल सड़कों को फौरी तौर पर तामीर और मुरम्मत करवाया जाए। कैमरामैन मोहम्मद तलहा और साथी रिपोर्टर इब्राहिम खान के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। मुल्तान शहर का दिल्ली रोड 3 हुकूमतें गुजरने के बावजूद भी दो रोया नहीं हो सका। साबिक और मौजूदा हुकूमतों के रोड को दो रोया करने के तमाम ऐलानात उस शहर से दिल्ली को जाने वाला रास्ता विहारी रोड ऐसा दराज से टूट फूट का शिकार है। गाड़ियों के पुर्जों की तोड़फोड़ और टायर फटने के साथ साथ हादसात भी मामूल हैं। अलमुस्तफा रोड की सूरत हाल भी इंतहाई अबतर है। मज़ीद जानते हैं वसीम शहजाद की इस रिपोर्ट में। मुल्तान में दिल्ली रोड अरसा दराज गुजरने के बावजूद भी दो रोया नहीं किया जा सका। साबिक और मौजूदा हुकूमतों का इस हवाले से कोई भी ऐलान पूरा ना हुआ। शहर से बाहर दिल्ली को निकलने वाला रास्ता बिहाड़ी रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से गाड़ियों के टायर फट जाते हैं। ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं कि बिहाड़ी रोड से गाड़ी का गुजर हो जाए तो बचत गाड़ी की मुरम्मत पर लग जाती है। बिल्कुल जीरो कर दिया है, ये बेहसी है हाईवे वालों की और पंजाब डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जो इंतजामिया है उनकी। हमने बार कहा है कि खुदारा रोड बनाएं। ऐसे मोटर नीचे आप उतरते हैं जनरल मुल्तान इंटर होने के लिए रोड का नामो निशान नहीं है। जो ज्यादातर एक्सीडेंट की वजूहत यही है। जब गाड़ी में चलाते तो ऐसे लगता है कि ये स्टीयरिंग की दूसरी तरफ मुड़ ना जाए, इतने जम खड्डे हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं है। और गाड़ी अगर एक काम जो है ना उसका हमने करवाना है ना हफ्ते में, तो वो दूसरे दिन काम निकल आता है वो वाला। दूसरी जानिब हुकूमत पंजाब की नाअहली अवाम के लिए दर्द सर बन गई। अलमुस्तफा रोड 3 साल से टूट फूट का शिकार है। इलाका मकीन परवेज इलाही की कारकर्दगी को दुहाइयां देने लगे। यहाँ के रोड के बहुत हालात खराब हुए हैं। दुकानदार यहाँ से छोड़ के चले गए हैं, बहुत हालात तंग है उनके। कारोबारी दुकान मामलात, दुकान मालिक अलहदा परेशान है, किराएदार अलहदा परेशान है, कारोबार है नहीं। बड़ा परेशान करते, कारोबार खत्म हो गए, रास्ते खराब हुए पड़े। आपकी मेहरबानी रोड बनाए, जल्द से जल्द काम करे। शहरियों का कहना था कि इंतजामिया होश के नाखून ले और सड़कों की मुरम्मत कराए ताकि हादसात में कमी होने के साथ साथ ट्रांसपोर्टर्स को भी रिलीफ मिल सके। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर हसन मलिक के हमरा वसीम शहजाद, रोही, मुल्तान। रुत बदली वक्त बदला मगर बहावलपुर की लारी अड्डा की हालत ना बदली। सहूलियात ना होने के बराबर बंद वॉशरूम्स नशे के आदी अफराद की आमाजगा बन गए। जगह जगह कूड़े के ढेर मुसाफिरों को खुशामदीद कहने लगे, लेकिन इंतजामिया टस से मस ना हुई। ताहिर जोया की रिपोर्ट में देखते हैं। साल बदल गया मगर बहावलपुर के लारी अड्डा की हालत न बदली। सहूलियात का फुकदान, बंद वाशरूम से नशा के आदी अफराद की आमाजगा बन गए। गंदगी के ढेर मुसाफिरों को खुशामदीद कहने लगे। धूल से सांस लेना भी मुहाल हो गया। ट्रांसपोर्टर्स का कहना था कि इंतजामिया महाना लाखों रुपए कमाती है मगर लारी अड्डा पर 1 रुपया भी नहीं लगाती। लारी अड्डा करोड़ों रुपए कमेटी को देंदे पैसे ते उनकी सफाई के बारे तुसा डिठे वे बंदे बीमार थी वेन, ड्राइवर कैलेंडर सारी रात सुमन छो बेचारे। उन्होंने वास्ते लैटरीन कहनी एक लैटरीन बढ़ाई ने उन्हें 15-20-30 लाख रुपए लेने एक जड़े कहनी चली। उनकी मोटर भी नशाई पट गए और दरवाजे नशाई पट गए, हम सुते भी नशाई पैन। क्या ये गवर्नमेंट का नुकसान गया नहीं?
गवर्नमेंट का नुकसान है, सारे पाकिस्तान का नुकसान है। लिहाजा सारी ये आवाम दे सारी सफाई का बिल्कुल इंतजाम करनी था। जब मुफ्त पैसे की दी उन्होंने कहीं 15-15 मिनट बाद आने का दिहाड़े कोई पानी शानी मारे वो भी लोगों को दिखाने वास्ते वल कह नहीं आते। मुसाफिरों का कहना था कि कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के दौरे बेसूद हैं। सहूलियात न होने की वजह से इनके साथ ट्रांसपोर्टर्स को भी मुश्किलात का सामना है। बसों के शेड की हालत इंतहाई मखदूश है। बारिश के दिनों में लारी अड्डा तालाब का मंजर पेश करता है। मकसद किए हैं, दौरे आए हैं, उधर कर जाते हैं, निशान लगा जाते हैं यहाँ पर, उसके बाद फिर चले जाते हैं। फर्क कभी आते हैं फिर चले जाते हैं। मुस्तकिल नहीं आया, उन्होंने काम किया ना आज तक कि वो आए हमें। मुसाफिरों और ट्रांसपोर्टर्स ने लारी अड्डे पर फौरी तरक्याती काम शुरू करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। मुल्तान में बिजली की लोड शेडिंग ने आवाम का जीना मुश्किल कर दिया। दर्जी भी बिजली की तवील बंदिश से परेशान है। बिजली की लोड शेडिंग के बायस दर्जियों के लिए काम करना मुश्किल हो गया। रिपोर्ट कर रही हैं सुहीरा तारिक। मुल्तान में बिजली की लोड शेडिंग ने आवाम की जिंदगियां जीरन कर दी। दर्जी भी बिजली की तवील बंदिश से परेशान हैं। लोड शेडिंग के बायस दर्जियों के लिए काम करना मुश्किल हो गया है। कारीगर काम ना होने की वजह से परेशान दिखाई देने लगे हैं। 9 बजे कल जो है ना, कल भी ऐसे हुआ कि दोपहर को 2 बजे लाइट आई है, तो सारा दिन लाइट नहीं होती, बड़ी परेशानी होती है। गाहक जो है ना अलहदा तंग करते हैं, कहते हैं टाइम पे हमें कपड़े नहीं देते। हम क्या करें, मजबूरी है कि हम बैठे हैं, लाइट होगी तो काम होगा। दर्जी कहते हैं पहले दिन में 6 से 7 जोड़े सिलाई करने वाले कारीगर अब 2 सूट मुश्किल से बना पाते हैं। ग्राहकों की राह तकते पूरा दिन निकल जाता है। वक्त पर सूट सिलाई ना होने की वजह से कस्टमर्स ने दुकान पर आना छोड़ दिया है। काम करते हैं, वो काम हमारा रुका होता है, बहुत परेशान हुए पड़े हैं। लोड शेडिंग बहुत हो रही है, रोजगार बहुत। हम 5,000 का 3,000 का अब तक कमाते थे, 2,000 का नहीं कमाते हम। बहुत परेशान है, अब बैठे हैं लाइट के इंतजार में। दर्जियों का कहना था कि काम ना होने की वजह से गुजर औकात करना मुश्किल हो गया है। हुकूमत से मुतालबा है कि बिजली की लोड शेडिंग और महंगाई पर काबू पाया जाए। कैमरामैन वसीम रियाज के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। जमात इस्लामी रहीम यार खान ने आम इंतखाबात के लिए कमर कस ली। अमीर जमात इस्लामी डॉक्टर उमर फारूक का कहना था कि जिला की 6 कौमी और 13 सूबाई सीटों के लिए उम्मीदवार नामजद कर दिए गए हैं। इंतखाबात में तारीखी कामयाबियां समेटेंगे। आमिर भट्टी की रिपोर्ट में देखते हैं। रहीम यार खान के जिले अमीर जमाते इस्लामी डॉक्टर उमर फारूक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका कहना था कि डॉक्टर अनवारुल हक हल्का NA 172 और PP 262 से फैसल जवेद उम्मीदवार होंगे, जबकि बल्दियाती ग्रुप लीडर म्यूनिसिपल कारपोरेशन सैयद सजाद महमूद को भी नामजद कर दिया गया है। जमाते इस्लामी ने जिले के 6 MNA और 13 MPS के उम्मीदवारान का ऐलान कर दिया। उनका कहना था कि जमाते इस्लामी के उम्मीदवारान किरदार, दियानत, खिदमत और सलाहियत के एतबार से किसी भी दूसरे उम्मीदवार के मुकाबले में अवाम के लिए बेहतरीन इंतखाब होंगे। हमने ये फैसला किया है कि हम पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर हर सीट के ऊपर अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे। और मैं बल्कि ये बता दूं आपको कि डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान की 6 कौमी असम्बली की सीटों के अंदर 6 कौमी असम्बली की सीटें और 6 की 6 के ऊपर हमारे उम्मीदवार जो हैं हमने नामजद कर दी हैं। 13 सूबाई असम्बली की सीटें हैं, उसमें से 10 के ऊपर हमने अपने उम्मीदवार नामजद कर दिए हैं और बाकी 3 सीटों के ऊपर अनकरीब जो है वो भी हम नामजद कर देंगे। इस मौके पर जिले अमीर जमात इस्लामी डॉक्टर अनवारुल हक समेत दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। डॉक्टर उमर फारूक का कहना था कि वो जिले के तमाम मसाइल से बाखूबी आगाह हैं। आम इंतखाबात में तारीखी कामयाबी के बाद अवाम का मियार जिंदगी बुलंद करेंगे। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम यार खान। मुल्तान डिस्ट्रिक्ट और सिविल कोर्ट में फैमिली केसेस की तादाद बढ़ने लगी। वकील कहते हैं कि बर्वक्त इंसाफ न मिलने की वजह से केसेस की तादाद बढ़ रही है। मजीद जानते हैं ओनाबास की इस रिपोर्ट में। मुल्तान डिस्ट्रिक्ट और सिविल कोर्ट में फैमिली केसेस की तादाद में इजाफा होने लगा। फैमिली केसेस में सबसे ज्यादा हक मेहर और तलाक के केसेस आ रहे हैं। हक मेहर की बात है, हक मेहर का इशू वाकई है। हमारे जितना ज्यादा हक मेहर लिखवाया जाता है उससे ये होता है कि हम लोग लड़की वाली ये समझते हैं कि इससे वो जो है वो अपने घर को, अपनी बच्ची को सिक्योर कर देंगे, लेकिन इस तरह नहीं होता। हक मेहर सिक्योरिटी जरूर है, लेकिन ये है कि ये पायदारी इस वजह से भी नहीं है कि वो मर्द लोग जो हैं वो इस चीज को इतना खास वो नहीं समझते। वकला का कहना था कि बरवक्त इंसाफ न मिलने की वजह से फैमिली केसेस बढ़ रहे हैं। मुल्तान डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जजेस की कमी है। हम मुतालबा करते हैं कि जजेस की तादाद को बढ़ाया जाए ताकि केसेस के फैसलों में ताखीर न हो। मेरा आप
आप लोगों के ज़रिए से चीफ जस्टिस पंजाब से ये कहना है कि वकला के अंदर जो लोग 10-10, 15-15 साल हो गए हैं जिनकी वकालत को, वो डायरेक्ट कानून में अमेंडमेंट करके तो जजेस लें। यहाँ 70 जजेस नहीं हैं, 70 के करीब जजेस और होने चाहिए। वकला का मजीद कहना था कि बुजुर्गों के बेहतर किरदार अदा न करने की वजह से फैमिली केसेस बढ़ रहे हैं। कैमरामैन रिजवान के साथ ओन अब्बास, मुल्तान। मुल्तान में पाकिस्तान सेंट्रल कॉटन कमेटी की मुलाजमीन सराप एहतजाज। मुलाजमीन की 8 माह से तनख्वाहें और पेंशन ना मिलने पर कलम छोड़ हड़ताल। मुलाजमीन ने PCCC की इमारत के दाखिले रास्ते पर एहतजाजी मुजाहरा किया। उन्होंने हुकूमत से जल्द तनख्वाहें अदा करने का मुतालबा किया। रिपोर्ट करे हैं अली रियाज। मुल्तान में पाकिस्तान सेंट्रल कॉटन कमेटी के मुलाजमीन तनख्वाहें ना मिलने पर सरापा एहतजाज। मुलाजमीन को 8 माह से तनख्वाहें और पेंशन नहीं मिली, जिस पर उन्होंने कलम छोड़ हड़ताल कर दी। मुलाजमीन ने PCC की इमारत के दाखिले रास्ते पर एहतजाजी मुजाहरा भी किया। मुलाजमीन ने हुकूमत से जल्द तनख्वाहें अदा करने का मुतालबा कर दिया। मुजाहरे में मुलाजमीन ने एहतजाजी बैनर्स भी उठा रखे हैं। 7 महीनों से तनख्वाहें और पेंशन 30% दी जा रही हैं और पिछले 4 सालों से हमें जो वाजबात हैं, जो गवर्नमेंट तनख्वाहें बढ़ाती हैं, वो आज तक हमें नहीं मिली। आप मुझे ये बताएं कि जब रिसर्च के इदारों की ये हालत होगी कि उनके मुलाजमीन को, साइंटिस्ट को आप रोड पे बैठने पे मजबूर कर देंगे, तो फिर रिसर्च कहाँ से होगी। मुजाहिरीन का कहना था कि कई माह से तनख्वाहें न मिलने की वजह से उनका गुजर बसर बहुत मुश्किल हो चुका है। वो फाका कशी का शिकार हैं। सिर्फ 30 से 40% तनख्वाहें मिल रही हैं। हमारे मुलाजमीन को पिछले 7 माह से तनख्वाहों की अदायगी नहीं की गई। इसके अलावा 2017 के बाद हमें बकाया जात अदा नहीं किए गए। आज हमारा एहतजाज का पहला दिन है और पुरअमन है। मैं अरबाब इख्तियारात, हुकूमती वज़रा और मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी को यह कहता हूँ कि वो होश के नाखन लें। हमारे सब्र का पैमाना अब लबरेज हो चुका है। एहतजाजी मुलाजमीन का मजीद कहना था कि अगर उनके मुतालबात ना माने गए तो एहतजाज का दायरा कार वसी कर दिया जाएगा। कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान के साथ अली रियाज, मुल्तान। और अब रुख करते हैं रहमियार खान का, जहां पर डिस्ट्रिक्ट बार के नौ मुंतखब सदर जाम अब्दुल मजीद लाड़ और जनरल सेक्रेटरी अहमद कांजू ने चार्ज संभाल लिया। जमहूरी रवायत के मुताबिक साबिक सदर और जनरल सेक्रेटरी ने इन्हें वेलकम किया। देखते हैं आसिम सिद्दीकी की रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट बार रहीम यार खान के 9 मुंतखब सदर और जनरल सेक्रेटरी ने अपने ओहदों का चार्ज संभाल लिया। जमहूरी रवायत को बरकरार रखते हुए साबिक सदर और जनरल सेक्रेटरी ने 9 मुंतखब ओहदेदारान को खुशामदीद कहा और अपनी नशिस्तें पेश करके चार्ज उनके हवाले किया। 9 मुंतखब सदर जाम अब्दुल मजीद लाड़ और जनरल सेक्रेटरी अहमद कांजू ने एतमाद का इजहार करने पर वकला का शुक्रिया अदा किया और ब्लैकमेलिंग को खत्म करने के अज़्म का इजहार किया। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये हमें बहुत बड़ी कामयाबी दी। जैसे हमारी रवायत चली आ रही है उसके मुताबिक हमें प्रेसिडेंट ऑफिस हमारे हवाले किया और जो सारे मामलात थे वो हमारे सुपुर्द किए। मैं सबसे पहले तमाम बार का मशकूर हूँ जिन्होंने मुझे खूबसूरत अंदाज से इलेक्ट किया है और अब मैं इंशाल्लाह पूरी बार का जनरल सेक्रेटरी हूँ और इंशाल्लाह हमारी ये खूबसूरत कैबिनेट मारूज़ वजूद में आई है। हम हर किसी को ऑनर देते हुए आगे चलेंगे और बार की बेटरमेंट के लिए इंशाल्लाह आखिरी हद तक जाएंगे। इलेक्शन जमहूरियत का हुस्न है और वकला का हर प्लेटफॉर्म हमेशा जमहूरियत का अलमबरदार रहा है। जीतने वाले उम्मीदवार सब कुछ बुलाकर सबको साथ लेकर चलने की रवायत पर कायम रहते हैं। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सिद्दीक, रोही, रहीम यार खान। अब खबर शामिल करती है पोलियो मुहिम के हवाले से। मुल्तान के रेलवे अस्पताल में भी पोलियो मुहिम का बाकायदा आगाज कर दिया गया। पोलियो मुहिम वर्कर का कहना था कि रेलवे स्टेशन और रेलवे अस्पताल में इंसदाद पोलियो मुहिम 16 से 20 जनवरी तक जारी रहेगी। 10 लाख से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। राना बिलाल की रिपोर्ट में देखते हैं। महकमा सेहत मुल्तान की जानिब से रेलवे अस्पताल और रेलवे स्टेशन पर इंसदाद पोलियो मुहिम का बाकायदा आगाज कर दिया गया। 10 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। पोलियो वर्कर्स का कहना था कि वालिदैन 1 से 5 साल के बच्चों को कतरे जरूर पिलवाएं ताकि फालिज जैसी मौजी मर्ज से बचा जा सके। ये गुजारिश है लोगों से कि वो अपने 1 दिन से लेकर पैदाइश से लेकर 5 साल के बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स लाजमी पिलाएं। ये गुड क्वालिटी की होनी चाहिए। बच्चे को सायादार जगह पिलाना चाहिए ताकि बच्चे हमारे ये कौमी सरमाया इनको महफूज करने के लिए पोलियो ड्रॉप्स लाजमी है। डॉक्टर अब्दुल समी का कहना था कि रेलवे स्टेशन और रेलवे अस्पताल में आने वाले बच्चों को 24 घंटे पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे हैं। पोलियो की जो मुहिम मुल्की तौर के ऊपर चल रही है और उसके अंदर पाकिस्तान रेलवेज की जानिब से भी पोलियो के आगाही के लिए भी और पोलियो कैंपेन के अंदर भरपूर शिरकत जारी है। न सिर्फ रेलवे हॉस्पिटल बल्कि रेलवे कॉलोनीज़ के अंदर और रेलवे स्टेशन के ऊपर भी। रेलवे स्टेशन
اسٹیشن کے اوپر بھی 24 آورز ٹیمز موجود ہیں. جو بھی مسافر پیسنجرز بچے آ رہے ہیں ان کو وہاں پر پولیو کے قطرے پلائے جا رہے ہیں. ڈی جی ہیلتھ جنوبی پنجاب ڈاکٹر ماہر محمد اقبال کا کہنا تھا کہ 30,000 سے زائد ٹیمیں متحرک ہیں. اس میں تقریباً ہم 70,000 سے زیادہ بچوں کو جو بلو 5 ایئرز ہیں ان کو ہم ویکسین، ان کو اورل جو پولیو ویکسین ہے ان کو دیں گے. اور ہماری تقریباً 30,000 کے نزدیک ٹیمیں ہیں جو ساؤتھ پنجاب کے ہر علاقے میں اپوائنٹڈ ہیں، اور انشاءاللہ اس کا یہ مہم 5 دن جاری رہے گی. انسداد پولیو مہم 16 سے 20 جنوری تک جاری رہے گی. کیمرہ مین عبدالرحمان کے ساتھ رانا بلال، روہی، ملتان. لیا میں سرائے کے وسیب کے رنگ اڈا ٹیل انڈس پر نیزہ بازی کے شاندار مقابلے، برگرفتار گھوڑوں کی شہ سواریوں نے اپنی مہارت کا خوب مظاہرہ کیا. روایتی کھیل دیکھنے کے لیے شائقین کثیری تعداد میں پہنچ گئے. مزید تفصیلات زاہد سرفراز کی اس رپورٹ میں. نیزہ بازی کا روایتی کھیل آج بھی مقبول ہے، جس میں برق رفتار گھوڑوں کے شہ سوار اپنی مہارت کا خوب مظاہرہ کرتے ہیں. لیا ٹیرنڈس میں منعقدہ نیزہ بازی کے دلچسپ مقابلوں میں اپنی مہارت کا مظاہرہ کرنے کے لیے پنجاب کے مختلف علاقوں سے معروف گھڑ سوار شریک ہوئے. گھڑ سواروں کی شاندار مہارت پر شائقین نے خوب داد دی. کوئی شاہ سوار نیزہ اکھاڑنے میں کامیاب رہا تو کوئی خالی ہاتھ گیا. میلے کا آرگنائزر محمد کاشف کا کہنا ہے کہ مقابلوں کا مقصد مہنگائی کے اس دور میں لوگوں کو تفریح فراہم کرنے کے ساتھ نیزہ بازی کے کھیل کو زندہ رکھنا ہے. یہ بیسیکلی ہمارا مقصد ہے جو پنجاب کے کلچر کو فروغ دینا. تو یہ ملکی حالات جس طرح چل رہے ہیں ٹینشن پریشانیوں میں، تو یہ عوام کو ہم خوشیاں بانٹ رہے ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ لوگوں کے دلوں سے ٹینشنیں ختم ہوں، یہ گراؤنڈوں کی طرف آئیں، یہ مثبت معاشرے کو فروغ دیں، یہ منشیات سے دور ہوں. تو بیسیکلی اس کا یہی مسئلہ ہے. سابق تحصیل ناظم کروڑ سردار سجاد خان، احسن ہموانہ سمیت دیگر مہمانوں نے گھڑ سواروں کی مہارت کو خوب سراہا. انتظامات ہیں اور اس غموں کے حالت میں جس طرح لوگ پریشان ہیں، اس طرح کے ایونٹس جو منعقد ہوئے ہیں یہ یقیناً بہت خوشی کے لہر ہے. اور نوجوانوں کو، اور یہ ایک پرانا ثقافتی جو ایک ہمارا کھیل ہے اس کو یہ پروموٹ کرنے کے لیے ایک اچھا ایک گیم ہے. صدیوں سے یہ کام ہو رہا ہے اور آباء و اجداد سے ہم اس کے شوقین ہیں. ہم اسے پورا یہ ڈسٹرکٹ بلکہ پورا پنجاب اس کھیل کو پسند کرتا ہے، اور یہ ہماری پرانی ثقافت ہے جو یہاں چل رہی ہے. نیزہ بازی کا روایتی کھیل جہاں زوال پذیر کا شکار ہے، وہیں اس کو زندہ رکھنے کے لیے شائقین آج بھی کوشاں ہیں. پنجاب کی ثقافت کو زندہ رکھنے کے لیے نیزہ بازی کا کھیل جہاں اہم تصور کیا جاتا ہے، وہیں پر شائقین کی تفریح کا بھی اہم ذریعہ ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ زاہد سرفراز، لیا. میاں والی کے مویشی پال حضرات کے لیے اچھی خبر. 10 نئی ویٹرنری ڈسپینسریاں تکمیل کی آخری مراحل میں داخل. نئے ویٹرنری ڈسپینسریوں کے اجراء سے مویشی پال حضرات مستفید ہوں گے. اختر مجاز کی رپورٹ میں دیکھتے ہیں. میاں والی میں 10 نئی ویٹنری ڈسپینسریاں تکمیل کے آخری مراحل میں ہیں. ایڈیشنل ڈائریکٹر لائف سٹاک متی الاسلام نے بتایا کہ میاں والی میں 1960 میں 15 ویٹنری ہسپتال بنائے گئے. گزشتہ سال اے ڈی پی اسکیم میں 10 ڈسپینسریاں رکھی گئیں جو اپریل میں باقاعدہ کام شروع کر دیں گی. یہ اسپتال جو 1960 میں بنے تھے، اس کے بعد ابھی پچھلے سال میں ایک اے ٹی پی اسکیم بنی ہے جس کے اندر 10 نئے ہسپتال سٹاف کے ساتھ بن رہے ہیں. تو اس میں سٹاف بھی نیا آ جائے گا. ہمارے ڈپٹی کمشنر صاحب اس اے ڈی پی اسکیم کے سلسلے میں کافی متحرک ہیں. تو اپریل سے یہ جو نئی ڈسپینسریز ہیں ود فل سٹاف، جس میں ویٹرنری آفیسر بھی آ جائیں گے اور ویٹرنری اسسٹنٹ بھی، ٹیکنیشین بھی، یہ سٹارٹ ہو جائے گی. ڈاکٹر متی الاسلام کا کہنا تھا کہ وہ مویشی پال حضرات کو بہترین سروسز فراہم کرنے کے لیے پر امید ہیں. ڈپٹی کمشنر محمد عمیر کی ہدایت پر 10 مزید ڈسپینسریوں کی اسکیم بھی بنائی جا رہی ہے. ابھی ایک اے ڈی پی اسکیم مزید ڈپٹی کمشنر صاحب سے میٹنگ ہوئی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ سروس ڈلیوری کو مزید بہتر کرنے کے لیے ایک اے ڈی پی اسکیم مزید بنا کے لائیں، اور جو آپ کا کرائٹیریا ہے اس کے حساب سے کتنی ڈسپینسریز اور بنتی ہیں. تو اس سلسلے میں ہم ڈپٹی کمشنر صاحب کی ہدایت پر ایک اور اسکیم بنائیں گے. ایڈیشنل ڈائریکٹر لائف سٹاک کا مزید کہنا تھا کہ محدود وسائل کے باوجود محکمہ لائف سٹاک مویشی پال حضرات کو بھرپور سروسز فراہم کر رہا ہے. کیمرامین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز، میاں والی. میاں والی میں معروف دانشور ریٹائرڈ ڈائریکٹر انفارمیشن تنویر خالد کے اعزاز میں تقریب. نامور شاعر سلیم شہزاد کی خصوصی شرکت. مقررین نے تنویر خالد کی شخصیت اور فنی زندگی پر روشنی ڈالی. میاں والی میں نامور شاعر سلیم شہزاد کی زیر صدارت معروف دانشور ریٹائرڈ ڈائریکٹر انفارمیشن تنویر خالد کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا. سلیم شہزاد کا کہنا تھا کہ تنویر خالد کا شمار میں خاریوں کے ساتھ انہوں نے ادب کے لیے بھی بھرپور کام کیا ہے.
ऐसी शख्सियत मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन में मौजूद थी जिन्होंने अपने काम के साथ साथ अदब, लिटरेचर और सहाफ़त का जो वो काम था उसको उसमें ऐसे ऐसे कारहाय नुमायाँ उन्होंने सर अंजाम दिए कि जिन्हें तादेर याद रखा जाएगा। अगरचे ये अब रिटायर हो चुके हैं मगर ये हमारे हम शायरों, अदीबों और साफ़ियों के दिलों में बसते हैं और हमेशा बसते रहेंगे। मियांवाली के मारूफ शायर नज़ीर जात का कहना था कि तनवीर खालिद की अदबी और सहाफ़ती खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। जो भी इनसे मिलता है ये उसको अपना बना लेते हैं और इन्होंने मियांवाली के लिए बहुत मतलब मियांवाली को इन्होंने अपना समझ के यहाँ ये रहे हैं और मियांवाली के लोगों, शायरों, ये अदीब जो साफ़ी हैं इनको सबको ऐसे जोड़ कर रखा है कि मुझे यकीन है कि ये जब चले भी जाएंगे तो वो लोग मिल के रहेंगे। 14 किताबों के मुसन्निफ और शायर मजहर नियाजी ने तनवीर खालिद को बड़ा अदीब, दानिशवर और तनकीद निगार करार दे दिया। तनवीर खालिद साहब मियांवाली के अदबी वर्से के अमीर रहे हैं। वो जितना अरसा मियांवाली में रहे हैं मियांवाली के अदबी तकरीबात में इजाफा हुआ और इसके अलावा उन्होंने नए शायरों की और जो बुज़ुर्ग थे, जो दरमियानी कद के शायर थे, सबकी उन्होंने हौसला अफजाई फरमाई। बड़े वसी ज़र्फ आदमी थे। रिटायर्ड डायरेक्टर इंफॉर्मेशन दानिशवर तनवीर खालिद का कहना था कि वो खूबसूरत तकरीब को हमेशा याद रखेंगे। मैं शुक्रगुजार हूँ मियांवाली के तमाम कलम कबीला के दोस्तों का, सहाफ़ियों का, जिन्होंने मुझे हमेशा मोहब्बत दी है। जिससे भी मोहब्बत करेंगे वो आपको मोहब्बत ही देगा। मियांवाली के लोगों का ये खासा है कि यहाँ पर जो भी ऑफिसर आया है या जो भी शख्स बाहर से आया है वो इनकी मोहब्बतों में झगड़ा किया है। मियांवाली के लोगों की मोहब्बतों को मैं कभी भी नहीं भुला पाऊंगा। तकरीब में रेस्क्यू डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर नवीद इकबाल, डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर खिजर हयात खान, शोराए कराम, सहाफियों और शहरियों की कसीर तादाद शरीक हुई। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।